Hello students, how are you? Myself Hobik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So today we will discuss some very important questions from the LPP, okay, word problems, okay, and which are very important for the board exams, okay, for every board, CBSE, ICSE and the state board, different state boards as well, okay. So without wasting time, we are going to start our first question, okay. And just write the first question that you can see on the screen also. The first question is given on the screen, okay. Now a farm manufacturers a farm manufacturers a farm manufacturers manufactures two products A and B, okay. Each product is processed in two machines. That means दो प्रोडक्ट है A और B, ठीक है, और दोनों प्रोडक्ट को प्रोसेस करने के लिए यू नीड टू हैव two machines M1 and M2. Now this M1 and M2, they have some individual requirements for the different machines respectively, okay. Product A requires 4 minutes of processing time on M1 and 8 minutes on M2. Product B requires 4 minutes on M1 and 4 minutes on M2, ठीक है. The machine M1 is available for not more than 8 hours 20 minutes. That means you can't use this M1 machine more than 8 hours 20 minutes, okay. That means the machine's availability, it is this time availability is given here 8 hours 20 minutes. You can't exceed that. While machine M2 is available for 10 hours during any working day, okay. The product A and B are sold at a profit of rupees 3 and rupees 4 respectively. Each type should be produced by the farm each day in order to get maximum profit. That means your objective function is what? Profit, and that should be maximized also, okay. So I think before getting this maximized profit, you need to consider total number of quantities of products A and B, and after that the requirements, that means the machine's availability supposed to be considered, okay. So let first question start karo. Let product A equals to X unit, ठीक है, and product B equals to Y unit, okay. Now maximum, that means if you consider this profit function as Z, and I think it will be the profit function. That means here the profits are given, you can see A and B are sold at a profit of 3 rupees and 4 rupees respectively. That means per unit profit of the product A is 3 rupees, that means total profit 3x, and per unit of product B is 4 rupees, that means total 4y, 3x plus 4y, and you need to maximize this Z. That means max Z equals to 3x plus 4y, ठीक है. It is your objective function. Objective function is already constructed, okay. It is your objective. Now two machines are required for making these two products, and the time availability and the conditions and the limitations are given for these two machines respectively. You can see product A requires 4 minutes of processing time on M1 and 8 minutes on M2, ठीक है. अगर मैं एक यहाँ पर टेबल कंस्ट्रक्ट करूँ, ठीक है, एक टेबल बना लेता हूँ, दैट विल बी यूजफुल, ठीक है, that will be useful. Now ये है प्रोडक्ट ए
and product B, and the machines are M1 and M2. तो प्रोडक्ट ए के लिए देखो मशीन M1 का रिक्वायरमेंट है, मशीन है रिक्वायर्स 4 मिनट्स ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑन M1, ठीक है, दैट मीन्स ये 4 यूनिट होगा, और M2 में होगा 8 मिनट, ठीक है, M2 में 8 मिनट, M2 में 8 मिनट, और B that means product B requires 4 minutes on M1 and 4 minutes on M2, that means B प्रोडक्ट में दोनों में ही टाइम रिक्वायरमेंट सेम है, ठीक है, ठीक है। अब टोटल M1 मशीन में, अब whether the product it is just the time requirements for the total machine 1 is, here you can see the machine M1 is available for not more than 8 hours 20 minutes, that means M1 मशीन का टोटल जो अवेलेबिलिटी है वो 8 आवर 20 मिनट्स होगा, ठीक है, और M2 का होगा यहाँ पर 10 आवर्स। Now you can see the whole question is in the minute formation, that means 8 hours 20 minutes, you should convert this 8 hours 20 minutes to the minute as well, okay, और 10 hours मतलब यहाँ पर 600 मिनट्स, 1 आवर दैट मीन 60 मिनट, और यहाँ पर है 480 प्लस 500 मिनट्स, 500 मिनट्स, ओके, एंड द प्रॉफिट ए प्रोडक्ट के लिए प्रॉफिट होता है ₹3 एंड बी प्रोडक्ट के लिए ₹4. Now it is your table. Now if you construct the constraint functions here, okay, so let us construct the constraint functions. यहाँ पर constraints क्या होगा, just write the constraints, ठीक है, यहाँ पर constraints क्या होगा, देखो फर्स्ट constraint होगा यहाँ पर जो है, देखो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में टोटल जो मशीन 1 का रिक्वायरमेंट्स हैं क्या होगा, देखो मशीन 1 प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी दोनों में 4 मिनट करके है पर यूनिट, तो यहाँ पर देखो तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 4x प्लस 4y और नॉट मोर देन, यू कांट यूज दिस मशीन 1 मोर देन 8 आवर 20 मिनट्स, दैट मीन्स 500 मिनट के ऊपर तुम मशीन 1 को यूज नहीं कर सकते हो, दैट मीन्स टोटल यूजेस ये है, ठीक है, और इसका क्वांटिटी जो है ना ये लेस इक्वल्स टू 500 होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड इज प्रोडक्ट जो मशीन M2, तो देखो तो ये 8x प्लस 4y लेस इक्वल्स टू 600 है कि नहीं, और यहाँ पर x, y greater equals to 0, universal constraints. Now after constructing this constraint you need to consider this as a straight line, that means 4x plus 4y equals to 500, that means 4x by 500 plus 4y by 500 equals to 1, that means x by यहाँ पर कितना होगा, x by कितना होगा, अगर मैं उसको देखो इसको अगर मैं 2 से काटूं और इसको 250, ठीक है, फिर 250 125, ठीक है, ओके, एंड ये भी देखो y by 125 इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट्स निकला, यहाँ पर क्या क्या पॉइंट निकलेगा, 125,0 and 0,125, right? Another straight line is what? Another straight line is 8x plus 4y equals to 600. That means 8x by 600
plus 4y by 600 equals to 1. That means x by, इधर काटेंगे तो क्या होगा 4 और इधर 300, 75 plus y by 150 equals to 1. That means यहाँ पर जो पॉइंट्स मिला, यहाँ पर 75,0 and 0,150. These are your two pair of points. Now I think you should draw the figure. Okay, you should draw the graph. Both the straight lines are being constructed. Now ठीक है, ठीक है ना. तो यहाँ पर पॉइंट्स 10-10 करके डिफरेंस ले लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ठीक है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ओके, तो ये है आपका 0,0 पॉइंट. ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, देखो 125,0 एंड 0,125. ओके, 125 कहाँ पर होगा, ये 1 2, ये जो छोटा डिवीजन है ना, ये 10 यूनिट करके है, याद रखना 10 यूनिट. तो 10 कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, 11 12, ये है 120. 125 बीच में होगा, है कि नहीं. तो 125,0 ये एक पॉइंट मिला. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये होगा 0,125 और ये होगा 125,0. अब दोनों लाइन ठीक है, हो गया. अब दूसरा पॉइंट क्या है, 75,0 एंड 0,150. 75,0, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, ये होगा 75. 75,0 and 0,150, that means ये 0,150. तो just join these 2 points. ठीक है. Now after drawing this line, you are getting one intersecting point here. So I think you should find this intersecting point. Okay, तो सॉल्विंग, इसको इक्वेशन नंबर 1 मारो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मारो. ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2. तो सॉल्विंग 1 and 2 सॉल्व करो दोनों को. ठीक है, 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 500 और इधर 8x प्लस 4y equals to 600. You could make it simple also. You could take some commons also and you could construct this equation as simple as possible. Okay, तो अगर माइनस करेंगे, देखो ये माइनस अगर करेंगे तो ये कैंसिल, दैट मीन्स माइनस 4x
और इधर हम -100, दैट मीन्स माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू 25, ठीक है। अगर x का वैल्यू 25 है, पुट दैट वैल्यू इन दिस इक्वेशन नंबर 1, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y ऑल्सो। 4 इंटू 25 प्लस 4y इक्वल्स टू 500, दैट मीन्स 4y इक्वल्स टू 500 माइनस 100, दैट मीन्स 400 होगा भाई, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 100। तो दैट मीन्स ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये 25,100 है, ठीक है। ओके, नाउ 25,100, राइट। नाउ अगर मैं यहाँ पर शेडेड पोर्शन ड्रॉ करूँ, दोनों स्ट्रेट लाइन का ही देखो लेस इक्वल्स टू साइन है। तो if you have this less equals to sign, then you should draw this arrows towards the origin, as I told you. Okay, so now both the straight lines have their arrows towards the origin. Then if you consider the common part between these two basic feasible region, and I think that will be this one. This portion is your shaded region. Okay, now in this shaded region you can see 3 corner points are there, this one and this one. तो यहाँ पर लिख लो, so the corner points टेबल ये सब मिटा दो। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है, एक तो है 0,125, दूसरा होता है 25,100, ठीक है, और उसके बाद होता है 75,0। ओके, अब जो है ना ये जेड में तीनों पॉइंट्स बिठा के देखो मैक्सिमम किस में आ रहा है। तो लिखो यहाँ पर 0,125, इस पॉइंट में जेड का वैल्यू कितना आ रहा है। तो मुझे तो लग रहा है कि 3 इंटू 0 दैट मीन्स 0, 4 इंटू 125 दैट मीन्स 500, जेड का वैल्यू 500 आ रहा है। और इधर 25,100, इस पॉइंट में जेड का वैल्यू 25, 75, और इधर आ रहा है 75, और इधर 400, दैट मीन्स 475, 475, ठीक है। और 75,0 उसमें जेड का वैल्यू क्या है, 3 इंटू 75, 3 इंटू 75 दैट मीन्स 225। तो देखो ये दोनों केसेस में 3x प्लस 4y, 4 इंटू 125 500 होगा। ये जो देखिए ये दोनों केस जो है ना, ये दोनों केस हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर टोटल किसी भी चीज़ का अगर मुझे क्वांटिटीज़ निकालना है, यहाँ पर देखो ये अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू काउंट करूँ 500 आ रहा है यहाँ पर मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन 500 में थोड़ा पॉइंट देखो, 0,125 दैट मीन्स 0, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 125, दैट मीन्स x का वैल्यू 0 मतलब क्या है, प्रोडक्ट A जो है ना मैन्युफैक्चर ही नहीं हुआ। प्रोडक्ट A, ये जो प्रोडक्ट A है ना मैन्युफैक्चर ही नहीं हुआ। इज इट पॉसिबल कि यहाँ पर प्रोडक्ट A मैन्युफैक्चर ही नहीं हुआ, तो व्हाई शुड आई कंसिडर दिस प्रॉफिट एंड दिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो रिमेंबर वन थिंग, व्हेनेवर जस्ट यू आर सॉल्विंग सम LPP क्वेश्चंस, then you will have to just actually avoid all the points which are lying on the axis as well. Okay,
and you should find the maximum and the minimum values whatever it is in that points which are lying between the segment. Okay, that means ये segment में जो values जो corner points रहेगा उसमें ही आपको minimum और maximum value निकालना है. अगर एक्सिस के ऊपर तुम निकालोगे कोई ना कोई एक प्रोडक्ट तो जीरो हो जाएगा, which is impossible. प्रोडक्ट जीरो तो यहाँ पर कभी नहीं होगा. दैट मीन्स प्रोडक्ट बना ही नहीं, ये तो नहीं होगा ना. सो दैट मीन्स यहाँ पर इसको हम लोग कंसिडर करेंगे. सो मैक्स जेड इक्वल्स टू 4, समझ में आया ना क्या बोला है मैंने, 475. दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू 25 एंड वाई इक्वल्स टू 100. तो हमेशा ये चीज़ जो है ना याद रखना कि एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट रहे उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ. एन एरोप्लेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एन एरोप्लेन कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स. मैक्सिमम एक एरोप्लेन जो है ना 200 पैसेंजर्स कैरी कर सकता है. ओके. A profit of rupees 400 is made on each first class ticket and a profit 600 is made on each economy class ticket. That means indirectly they want to say there are two categories. There are two categories of the passengers. First category, that means first class, and the second category is economy class. Okay. So some passengers are from first class and some passengers are from second class, that means third class, economy class. Now they are making some profit by selling their tickets. Okay. So in this actually first class ticket, okay, profit कितना है रुपीज़ 400 एंड इकोनॉमी क्लास में प्रॉफिट जो है 600 है. अरे इकोनॉमी क्लास से ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं वो लोग हैं, इकोनॉमी क्लास से ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं. दे शुड टेक द मोर प्रॉफिट्स फ्रॉम द रिच पीपल्स, नो, एंड दे आर एक्चुअली टेकिंग द मोर प्रॉफिट्स फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिलीज. ओके, हाउ इज दिस पॉसिबल? ओके, नाउ the airline reserves at least 20 seats for the first class. That means this Airbus, this aeroplane reserves 20 tickets, at least 20 tickets for the first class passenger. That means first class passengers, number of first class passengers must be greater or equals to 20. Am I right or not? क्योंकि at least 20 बोला गया है ना. That means कम से कम 20 पैसेंजर्स होना चाहिए फर्स्ट क्लास में. दैट मीन्स 20 से ज़्यादा, दैट मीन्स ग्रेटर इक्वल्स टू 20. एम आई राइट? ठीक है. और इकोनॉमिक क्लास में ऐसा कोई बाइंडिंग्स नहीं है. यहाँ पर देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, however at least 4 times as many passengers prefer to travel by economy class to the first class. Obviously फर्स्ट क्लास में जितने लोग जाते हैं उससे 4 टाइम्स ज़्यादा इकोनॉमिक क्लास में जाते हैं. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, नो. वी कांट प्रेफर दिस फर्स्ट क्लास टिकट. if your plane fare in the economy class is 2000 rupees or 2000, 4000, whatever, the 3 times will be more than this economy class ticket. Okay, in the first class 12,000 होगा. तो who will prefer these things? है पैसा का झाड़ में उगता है क्या? ओके. अच्छा, यहाँ पर बोलो 4 times as many passengers prefer to travel by economy class to the first class. Determine how many each type of tickets must be sold in order to maximize the profit for the airline. What is maximum profit? That means here we need to consider total number of first class ticket passenger and second economy class ticket passenger. Okay, so let passenger
in first class equals to x passenger in economy class equals to y unit, y total. now अगर मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना है तो आई थिंक दिस होल क्वेश्चन इज डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट एक्चुअली, नो. दैट मीन्स यहाँ पर पार फर्स्ट क्लास टिकट में 400 करके प्रॉफिट होता है, दैट मीन्स 400x, एंड इकोनॉमी क्लास में 600y. ये है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एंड आई थिंक यू नीड टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, दैट मीन्स मैक्स जेड. मैक्सिमाइज है ना, थोड़ा देखो तो मैक्सिमाइज, यस, मैक्स जेड. ओके, सो इट इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सो इट इज योर व्हाट? ऑब्जेक्टिव राइट. नाउ अगर मैं कॉन्स्ट्रेंट फंक्शन की तरफ जाऊं, कॉन्स्ट्रेंट फंक्शंस की तरफ देखो, बोला गया कि एन एरोप्लेन कैन कैरी मैक्सिमम 200 पैसेंजर्स whether they are traveling in a first class or economy class. The capacity of this plane is 200 passengers. That means x plus y less equals to 200. Am I right? ठीक है. और यहाँ पर बोला गया कि एयरलाइन रिजर्व्स एटलीस्ट 20 सीट्स फॉर द फर्स्ट क्लास. दैट मीन्स फर्स्ट क्लास में एक्स है, देखो फर्स्ट क्लास टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स मैंने एक्स लिया है, तो एटलीस्ट 20 टिकट्स हैं. दैट मीन्स एक आदमी को तो एक ही टिकट चाहिए ना, एक लोग तो मतलब एक पैसेंजर को तो एक से ज़्यादा तो टिकट नहीं चाहिए. तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स, दे आर सिमिलर, नो. तो यहाँ पर जो है ना एक्स एटलीस्ट 20 टिकट्स बोला है ना, दैट मीन्स कम से कम तुम्हें 20 पैसेंजर चाहिए फर्स्ट क्लास, मतलब फर्स्ट क्लास केबिन में. दैट मीन्स एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू 20. ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं. और इसके बाद बोला गया कि इकोनॉमिक क्लास में ज़्यादा होता है. तो इकोनॉमिक क्लास देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, however at least 4 times as many passengers prefer to travel by economy class to the first class. that means फर्स्ट क्लास के कंपेयर में इकोनॉमी क्लास में ज़्यादा पैसेंजर होता है. ठीक है. सो दैट मीन्स यहाँ पर अगर देखो इकोनॉमिक यहाँ पर मैंने क्या लिया है, फर्स्ट क्लास x, इकोनॉमिक क्लास y, नो. तो दैट मीन्स फर्स्ट क्लास के साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स बोला है ना, 4 मल्टीप्लाई करेंगे, एटलीस्ट बोला है ना. दैट मीन्स y एटलीस्ट y लेस इक्वल्स टू 4x. देखो तो मतलब फर्स्ट क्लास में जितने लोग जाएंगे उससे 4 टाइम, मतलब कम से कम 4 टाइम्स ज़्यादा इकोनॉमी क्लास में जाएंगे. ठीक है. तो कम से कम मतलब तो यही कर सकते हैं, ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पर. ठीक है. y लेस इक्वल्स टू 4x, राइट. तो दीज आर ऑल constraints and x and y greater equals to 0. ओके. नाउ लेट तुम्हें जो करना है x प्लस वाई इक्वल्स टू 200. ठीक है. x इक्वल्स टू 20 एंड 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, राइट. तो इसको थोड़ा ठीक तरह से लिख भी लेते हैं. ठीक है. 4x माइनस वाई ग्रेटर इक्वल्स टू 0. ठीक है. हो गया. अच्छा, अब ये है इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3.
नाउ यू कैन ड्रॉ द फिगर। अब तुम फिगर थोड़ा ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं फिगर ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। एक काम करते हैं, 20 करके डिवीजन ले रहे हैं, छोटा डिवीजन जो है ना 20 करके ले रहे हैं, 20। ग्राफ पेपर में जो भी मतलब जैसे हाउ टू मेक योर कैलकुलेशंस एज इजी एज पॉसिबल, देन आई थिंक यू शुड फॉलो दैट प्रोसेस ओनली, ओके ना। तो दैट मीन्स ये वन स्मॉलर डिवीजन इज 20 यूनिट, ओके। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट में क्या होगा, देखो x बाई 200 प्लस y बाई 200 इक्वल्स टू 1, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या करना है, ये तो 20 में सीधा लकीर खींचना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो है ना 200, 0, दैट मीन्स यहाँ पर पॉइंट क्या होगा 200, 0 एंड 0, 200, ठीक है। ठीक है। तो यहां पर एक चीज थोड़ा नोटिस करो, क्वेश्चन में थोड़ा देखो, यहां पर ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये ग्रेटर इक्वल्स टू होगा, ठीक है। कम से कम एटलीस्ट बोला गया ना, दैट मीन्स ये जो पार्ट है ना एटलीस्ट है, कम से कम, दैट मीन्स ये जो इकोनॉमिक क्लास जो है ना उससे 4x से ज्यादा होगा, तो है क्या नहीं, कम से कम 4 टाइम्स बोला है ना, कम से कम 4 टाइम्स, दैट मीन्स 4 टाइम्स से ज्यादा भी हो सकता है इकोनॉमिक क्लास में टोटल पैसेंजर्स। तो इकोनॉमिक क्लास में टोटल पैसेंजर्स तो मैंने y लिया है, और 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स, कम से कम 4 टाइम्स, दैट मीन्स 4x। तो कम से कम अगर यहां पर ये वर्ड यूज किया गया, कम से कम, दैट मीन्स इकोनॉमी फर्स्ट क्लास में जितने स्टूडेंट्स नहीं पैसेंजर है उसमें जो 4 टाइम्स हैं, कम से कम 4 टाइम्स, दैट मीन्स 4 टाइम्स से ज्यादा भी होगा, है कि नहीं। सो दैट मीन्स यहां पर ये जो टोटल इकोनॉमिक क्लास में टोटल पैसेंजर्स हैं ये 4 टाइम या फिर 4 टाइम से ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए ग्रेटर इक्वल्स टू यहां पर देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा यहां पर देखो, तो अगर मैं यहां पर डिविजन लूं 200, 0, 0, 200, तो ले लो यहां पर ये जो छोटा डिवीजन है ना 20 यूनिट्स करके मैंने लिया है, यहां पर ऊपर लिख लो स्मॉल डिवीजन इक्वल्स टू 20 यूनिट्स, ठीक है। ग्राफ पेपर में भी तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा, रिमेंबर दिस थिंग। तो 200, 0, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर 20 यूनिट करके पर डिवीजन है तो 200 कहां तक जाएगा, 20 में जाएगा, है कि नहीं। यहां पर भी सेम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वाह देखो ये है 0, 200, राइट। तो अगर ये दोनों लाइन को मैं ज्वाइन, दोनों पॉइंट को, सॉरी लाइन कहाँ से ज्वाइन होता है, दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया, ये क्या लाइन बन गया पता नहीं, ठीक है। यहाँ पर वो ऑप्शन होगा शायद लाइन वाइन ड्रॉ करने का, ठीक है, ये भी सीखेंगे धीरे धीरे, है। फिर उसके बाद x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 20, तो ये सीधा लाइन है, दैट मीन्स ये 20, 0 पॉइंट में सीधा लाइन खींच दो, यही तो होता है। बस ठीक है, और ये होता है 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये, ठीक है ना। और ये साइन थोड़ा चेंज होगा, सॉरी ये जो साइन है ना 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई ये होगा, ठीक है। तो यहां पर प्रॉब्लम ये है, मैं तो यहां पर 0, 0 मैंने बोला था कि ये लेस देन होने से तुम्हें क्या करना है, लेस देन होने से क्या करना है, लेस देन होने से तुम्हें डायरेक्ट टुवर्ड्स द ओरिजिन देना है। अरे भाई ये तो खुद ही ओरिजिन से पास हो रहा है, ये तो खुद ही ओरिजिन से पास हो रहा है। देखो ये लाइन थोड़ा देखो स्ट्रक्चर,
अगर इस स्ट्रक्चर का लाइन होता है ना, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 4x, ऐसा होता है ना लाइन। अब यहाँ पर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 पुट करो तो देखो दोनों तरफ सेटिस्फाई हो रहा है, 0 0 हो रहा है। दैट मीन्स ये जो लाइन है खुद ही तो 0,0 पॉइंट से पास हो रहा है। अब टुवर्ड्स 0, ऑपोजिट 0 कैसे समझ में आएगा, है कि नहीं। जब ऐसा कंडीशन आए, ओके, सबसे पहले तो तुम लाइन ड्रॉ करो, सबसे पहले तुम लाइन ड्रॉ करो। तो यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट निकालूँ, हाँ, बॉक्स करके अगर मैं पॉइंट निकाल लूँ, क्या है, एक्स वाई, दैट मीन्स एक्स अगर 1 है y 4 है, x अगर 2 है y 8 है, x अगर 3 है तो y 12 है। दैट मीन्स 1,4, दैट मीन्स कुछ ऐसा होगा, इस टाइप का लाइन होगा। यहाँ पर तो बहुत ही बिगर डिवीजन ले लिया ना मैंने, बहुत बड़ा डिवीजन ले लिया, ठीक है। तो ये इस टाइप का कुछ लाइन होगा, ठीक है। अब इस लाइन में किस तरफ एरो जाएगा, बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, किस तरफ एरो जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पर देखो मतलब x और y का वैल्यू तुम्हें ऐसा कुछ चूज करना है जिससे आंसर 0 से छोटा मिले, है कि नहीं, 0 से छोटा आंसर आए। दैट मीन्स यहां पर y का वैल्यू 4x से ग्रेटर होना चाहिए, है कि नहीं। सो दैट मीन्स यहां पर y का वैल्यू अगर मैं सपोज 10, जो भी हो 10 लो, y का वैल्यू मैं क्या ले रहा हूं, देखो यहां पर y का वैल्यू 10 ले रहा हूं और x का वैल्यू सपोज 2 ले रहा हूं। अब बोलोगे सर ये क्यों लिया मैंने, क्योंकि अल्टीमेटली यू शुड गेट द नेगेटिव आंसर, ओके। लेस देन 0 should come, that means less than 0 case, that means what type of numbers will be coming here, negative numbers। तो अगर मुझे यहाँ पर x और y का वैल्यू चूज करना है तो ऐसा ही वैल्यू मुझे चूज करना है जिससे नेगेटिव आंसर आए। तो y का वैल्यू 10 और x का वैल्यू 2, ठीक है। तो पॉइंट शायद यहाँ पर 2,10 आ रहा है कि नहीं। अब 2,10 पॉइंट जो है ना, ये जो लाइन है किस तरफ होगा रे भाई, थोड़ा तुम मुझे बोलो तो। 2,10 पॉइंट जो है किस तरफ होगा, इस तरफ होगा या फिर इस तरफ होगा, 2,10। 2,10, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये तो खुद ही देखो ये तो 20 में है। तो 10 किस तरफ होगा, 2,10, 2 तो मतलब इस बीच में होगा, x का वैल्यू 2, दैट मीन्स यहाँ पर होगा गैप में। और 10 भी देखो, ये तो ये 2,10 मतलब कहाँ पर होगा, हाइट यहाँ पर ही होगा, दैट मीन्स इस तरफ ही होगा, है कि नहीं। देखो तो इस तरफ होगा कि नहीं। सो दैट मीन्स फर्स्ट लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट लाइन में देखो लेस देन है, दैट मीन्स इस तरफ एरो आएगा टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। सेकेंड लाइन में देखो इस तरफ एरो जाएगा, सेकेंड लाइन में कहां पर, ऑपोजिट साइड में एरो जाएगा। अब थर्ड लाइन में इस तरफ आएगा या फिर इस तरफ जाएगा, जहां पर ये पॉइंट रहेगा उसी तरफ एरो जाएगा, है कि नहीं। तो मुझे बोलो यहां पर 2,10 पॉइंट, ये जो लाइन है ना, इसके इस तरफ आएगा या फिर इस तरफ है, ऑब्वियसली इस तरफ होगा, क्योंकि देखो 2,10 एक्स का वैल्यू क्या है 2, तो एक्स का वैल्यू ये जो डिफरेंस है ना ये 20 है, तो 2 मतलब क्या है, बीच में होगा, दैट मीन्स इस गैप में ही पॉइंट होगा किसी न किसी जगह, है कि नहीं। तो ये जो पॉइंट है लाइन के किस तरफ है, इस साइड में है ना, सो एरो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। अब यहाँ पर शेडेड पोर्शन कौन सा आ रहा है, थोड़ा देखो तो। यहाँ पर मुझे तो लग रहा है कि शेडेड पोर्शन ये जो है ना, ये जो है ये है आपका शेडेड पोर्शन, ठीक है। अब इस शेडेड पोर्शन में 3 कॉर्नर पॉइंट्स हो रहा है, 1 2 और ये 3, ठीक है, हैं, ठीक है। अब यहां पर शुरू करेंगे नाउ अब तो यहां पर तुम्हें निकालना पड़ेगा, है 3 कॉर्नर पॉइंट्स मिला और तीनों की तीनों अननोन है, ठीक है, निकालना तो पड़ेगा यहां पर। तो अब शुरू करते हैं सॉल्विंग 1
एंड 2, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 200 और दूसरा लाइन है x इक्वल्स टू 20। तो यूजिंग दिस इक्वेशन y का वैल्यू कितना मिलेगा रे भाई, y का मिले तो 180 मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पर पॉइंट्स क्या मिला, 20,180। दैट मीन्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सॉल्व करके ये पॉइंट मिला। अब पॉइंट कौन सा मिलेगा बोलो तो ये पॉइंट 20,180, राइट। अब ये पॉइंट मतलब यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 3 सॉल्विंग 1 एंड 3। अच्छा यहाँ पर क्या है, x प्लस 4y, कहाँ मिला, x प्लस y है कि नहीं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 200 और यहाँ पर तो y इक्वल्स टू 4x है। अब y का वैल्यू 4x यहाँ पर बिठाओ, 5x इक्वल्स टू 200। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 40। अब x का वैल्यू 40 है तो y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर x का वैल्यू 40 बिठाओ, 160। दैट मीन्स यहाँ पर पॉइंट होगा 40,160। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ये 40,160 है, ठीक है। ये मिल गया। अब ये पॉइंट कौन सा लाइन है, इक्वेशन 2 एंड 3, ओके। तो सॉल्विंग 2 एंड 3, लो सॉल्व करो। 3 मतलब y इक्वल्स टू 4x और इधर x इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा, 20। दैट मीन्स 80। लो पॉइंट मिल गया 20,80, है कि नहीं। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ना ये 20,80 है। लो वी हैव फाउंड ऑल द कॉर्नर पॉइंट्स। नाउ यू शुड फाइंड द वैल्यू ऑफ z। निकाल लो आंसर। यहाँ पर तो तुम्हें मैक्स निकालना है ना, तो बस यहाँ पर शुरू कर दो। कॉर्नर पॉइंट तो तुम्हें पता ही है अभी, ठीक है ना। और z भी है यहाँ पर, ये देखो z ऑलरेडी लिखा हुआ है। बस एक एक करके वैल्यू पुट करो और देखो, चेक करो वेयर दिस मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ z आर कमिंग, ओके। यहाँ पर x का वैल्यू 20, y का वैल्यू 180 और मैक्स z का वैल्यू होगा 116,000, ओके। सो इट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये दोनों क्वेश्चंस जो है ना बहुत ही अटेंटिवली सॉल्व करेंगे और ये कैलकुलेशंस थोड़ा ठीक तरह से देखेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे, जस्ट यू शुड ट्राई टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके। सो व्हेनेवर जस्ट यू आर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, देन योर ब्रेन will be nourished, okay, your brain will be restructured, okay. So that's enough for today. Let's meet in the next lecture, okay. For today's lecture that are sufficient, these two questions are sufficient, okay. So thank you for joining my classes. Bye and Jai Hind. And if you like my videos, then please subscribe, like and share my channel. Thank you very much.